बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सदारत में आज अहम इजलास होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अहम वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में आला अस्करी क़यादत और वज़ीर आला की शिरकत भी मुतवक्किल है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। ईरान, अमरीका, इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास पर एतमाद मिलेंगे। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील का जायज़ा भी लिया जाएगा। इजलास में किफ़ायतशारी पॉलिसी और इक़दामात पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को सब्सिडी देने से मुतालिक फ़ैसले मुतवक्किल हैं। आपको बताएं नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अमरीका और ईरान के दरमियान बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी को अपने लिए एज़ाज़ समझेगा। खुशी है कि ईरान और अमरीका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। कोशिश होगी कि तनाज़े का जामे और देरपा हल निकाला जा सके। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना जंगबंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़रा ने भी मसले के हल के लिए बातचीत के आगाज़ को सराहा। चीन और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वज़ीर ख़ारजा इजलास पर मीडिया को बताया कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के रहनुमाओं के साथ इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। मेहमान वज़रा को मुज़ाकरात के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग से किसी का फ़ायदा नहीं, उसे जल्द ख़त्म होना चाहिए। मसाइल का हल बातचीत और सिफारतकारी में ही है। UN चार्टर के मुताबिक तमाम मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने चारों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने पर भी बात की। We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Let me underscore my profound gratitude to my brothers, the foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey and Egypt for their support to Pakistan efforts for peace in the region. The purpose of the visit of the foreign ministers was to participate in the second meeting of consultations among Pakistan, Saudi Arabia, Turkey and Egypt. The foreign ministers held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. I briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. The foreign ministers advocated dialogue and diplomacy as the only viable pathway to prevent conflicts and to promote regional peace and harmony. We called for upholding principles of the UN Charter, including respect for sovereignty and territorial integrity of all states. The foreign ministers also discussed ways and means to further strengthen mutual cooperation among the 4 brotherly countries. I had a detailed telephonic conversation with Chinese Foreign Minister Wang Yi. China fully supports Pakistan's initiative to host Iran-US talks.
पाकिस्तान ने एक बार फिर सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया है और दोनों मुल्कों ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफाक किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों से आगाह किया। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब के कायदाना किरदार पर जोर दिया और इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी शरीक थे। वज़ीर आज़म से तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के जरिए बिल वास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में ये भी कहा, अमेरिका ईरान का तेल को कब्जे में ले सकता है। अमेरिका खारक जजीरे पर कब्जा कर सकता है। दौरान परवाज तैयारे में गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ बराह रास्त और बिल वास्ता बातचीत कर रहे हैं। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले करके तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद किर्ज और तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हुई। हमलों से ईरानी सूबे अलबर्ज में भी बिजली का ग्रिड मुतासिर हुआ। ताहम कुछ देर बाद बेशतर इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई। तब्रेज़ में शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि $700 मिलियन का बोइंग E-3 जासूसी तैयारा $20,000 के शाहिद ड्रोन ने तबाह किया। हमला ड्रोन और मिसाइल के साथ बैक वक्त किया गया। जदीद तरीन जासूसी तैयारा मिसाइल हमलों से बचने की कोशिश में था कि ड्रोन टकराया। हमले में करीबी तैयारों को नुकसान पहुंचा। 10 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ईरान ने इसराइल के जनूबी इलाके के सनती जोन में मिसाइल हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों से जनूबी इसराइल की फैक्ट्रियों में आग लग गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल हमले से केमिकल फैक्ट्री निशाना बनी। एक शख्स जख्मी हो गया। फैक्ट्री में खतरनाक मवाद मौजूद होने की इतलात हैं। इसराइली हुकाम ने सनती जोन के नज़दीकी मकीनों को घरों में रहने और खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने की हिदायत की है। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट में उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल का फैसला सुना दिया गया। तमाम 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। जनवरी 2018 में मेहर में उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। केस की मुद्दई उम्मे रुबाब का कहना है कि वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगी। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट दादू ने 27 फरवरी की समाअत में उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के तहरे कत्ल केस का फैसला गवाहान के बयानात और दलाइल के बाद महफूज किया था। केस में नामजद 2 अरकान सिंध असम्बली सरदार चांडियो, उनके भाई बुरहान चांडियो और केस की मुद्दई उम्मे रुबाब चांडियो सख्त सिक्योरिटी में अदालत पहुँचे, जबकि SHO समेत दीगर 6 मुल्जिमान भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए तमाम 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया। केस की मुद्दई उम्मे रुबाब चांडियो और उनके वकील सलाउद्दीन पंवर का कहना था कि वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह
फैसला में सुरखरू होंगी। अवाम जान चुकी है, अवाम की अदालत में हम जीत चुके हैं। ये फैसला रियासत की अदालत की तरफ से आए पर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंशाल्लाह हमारे हौसले बुलंद रहेंगे। सरदारी और फेडरलिज्म के खिलाफ थे, उस मोटिव पे ये सारा इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 मर्डर हुए, जिसमें 3 आई विटनेस मौजूद थे, मेडिकल सपोर्टिंग एविडेंस था और इतना एविडेंस तो हमारी नज़र में ज़रूर था कि इसमें कन्विक्शन हो सकती थी। इसमें हम अपील में जाएंगे, अभी फोरम्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो सीधी बात है कि हम वो फोरम्स अवेयर करेंगे, वो रेमेडीज़ जो कानून हमें प्रोवाइड करता है वो रेमेडीज़ हम अवेयर करेंगे, हम अपील में जाएंगे। तहरे कत्ल के मुकदमे को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत नौशेर फिरोज, सक्खर, मीरपुर माथेलो और बाद अज़ा सेशन कोर्ट दादू मुंतकिल किया गया था, जबकि उम्मे रुबाब चांडियो के मुताबिक 8 साल के दौरान इस केस की 400 से ज़ायद समातें हुई। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, दादू। कराची में DHA फेज़ 5 में डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। आग की सूरत हाल के हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। जी काशिफ। आज बिल्कुल DHA फेज़ 5 से आपको रिपोर्ट करें, जहां डिपार्टमेंटल स्टोर में सुबह 5:30 बजे के करीब आग की इत्तला मिली। तब से लेकर अब तक जो है वो मुख्तलिफ फायर टेंडर्स यहां काम कर रही हैं। ना सिर्फ फायर टेंडर्स बल्कि स्नॉर्कल की मदद से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ गया और धुएं की शिद्दत को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त यहाँ 10 से ज़ायद फायर टेंडर, 1 स्नॉर्कल, 2 वाटर बाउजर काम कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से ना सिर्फ इस तमाम तर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बाहर भी जो है वो बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। उन्हें हटाने के लिए पुलिस, रेंजर्स और DHA सिक्योरिटी फोर्स की जो टीम है वो यहाँ काम कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि तमाम तर लोगों को यहाँ से पीछे रखा जाए। इस वक्त भी धुआं यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएं तो बड़ी तादाद में ना सिर्फ यहाँ रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस की भी टीमें काम कर रही हैं और धुएँ की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। डिपार्टमेंटल स्टोर ग्राउंड +2 है और इसकी सबसे पहले बेसमेंट में आग लगी, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर को जो है वो आग ने अपनी लपेट में लिया और अब कोशिश ये की जा रही है कि बेसमेंट को जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर करने के बाद ग्राउंड फ्लोर को जो है वो क्लियर किया जाए। अब सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है और फौरी तौर पर आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। जी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डिफेंस में वाक़े निजी सुपर स्टोर में लगने वाली आग पर रेस्क्यू के काम का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इंतजामिया ने तस्दीक की है कि उनका कोई मुलाजिम स्टोर में मौजूद नहीं। ये इलाका कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम आता है और यहाँ फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। टारगेट ये है कि रेस्क्यू का अमल जल्द मुकम्मल हो ताकि नुकसान से बचा जा सके। फायर सेफ्टी ऑडिट होने का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ आग नहीं लग सकती। ये एक वाक़या है, वो कहीं पर भी हो सकता है। जो मुझे डिप्टी कमिश्नर साउथ ने बताया है, DC साउथ ने, कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के अफसरान ने उनको कन्वे किया है कि इस बिल्डिंग का, इस इमारत का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। तो उसकी तफसीलात जो है वो हम कंटोनमेंट बोर्ड से भी लेके और कंटोनमेंट बोर्ड से आप भी बात कर सकते हैं, वो तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। अभी हम इस तफसीलात में नहीं जा रहे कि क्या फैक्टर्स थे, क्या नहीं थे। अभी टारगेट ये है जो रेस्क्यू का अमल है उसको मुकम्मल कर लिया जाए ताकि मज़ीद कोई नुकसान ना हो। उसके बाद जो तहकीकात और तफ्तीश करने की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह की जाएगी और उसको पब्लिक करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस मकान की छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में बच्चों और ख़वातीन समेत 15 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, बन्नू, एबटाबाद, सवाबी और लोअर दीर समेत दीगर शहरों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हो रही है। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बन्नू में 2 दिनों में अमवात की तादाद 8 हो गई। कोहाट में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। पेशावर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अब तक 39 मिलीमीटर बारिश हुई है जिसके बायस मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात ने पख्तूनख्वा में कल तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए हैं जिससे बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। मौसम के हवाले से मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर।
पेशावर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से अब तक बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने और बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। सबसे ज्यादा बारिश चराट में 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पेशावर में 39, कालाम में 21, द्रोश में 10, तैमरगरम में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। बारिश के बायस पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता है। बिजली की सप्लाई न होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मगरबी हवाओं का एक मजबूत सिस्टम 1 अप्रैल से मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। इस सिस्टम के ज़ेर असर कराची समेत सिंध में बारिश का इम्कान है। उनीबा ज़मीर शाह आगाह कर रही हैं। कराची में इन दिनों समंदरी हवाएं मौसम काफ़ी खुशगवार रखती हैं। इस वक्त भी जनूब मगरिब से चलने वाली समंदरी हवाएं 10 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और कराची में इन दिनों बादल तो यूँ छाए रहते हैं कि गुमा होता है कि जैसे मानसून का आगाज़ हो चुका है, लेकिन ये मानसून नहीं, ये मगरबी हवाओं के सिस्टम्स हैं जो मुल्क पर असरअंदाज हो रहे हैं। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए तो माहिरीन मौसमियत बता रहे हैं कि 2 और 3 अप्रैल को कराची में गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। फिलहाल जो सिस्टम की इंटेंसिटी हमें नज़र आ रही है उससे यही लगता है कि कराची में इस सिस्टम से तेज़ बारिश का इम्कान भी मौजूद रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम करीब आएगा तो उसकी शिद्दत के बारे में वाज़ेह तौर पर पेशन गोई की जा सकेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जब सिस्टम कराची के करीब आते हैं तो अक्सर उनकी जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल यही इम्कान है कि 2 और 3 अप्रैल को कराची में बारिश हो सकती है, जिसके बाद ये सिस्टम मज़ीद आगे की जानिब बढ़ेगा। मुल्क के बलाई इलाकों और दीगर मकामात पर भी ये सिस्टम गरज चमक के साथ बारिश बरसा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अप्रैल के महीने में बारिशें ना होने के बराबर हैं, और अगर ये बारिश होती है तो ये काफ़ी थोड़ा सा रेयर भी होगा, क्योंकि अप्रैल में कराची में कुछ ख़ास बारिश नहीं होती। जी, मौसमियाती तब्दीलियां अपना जंग दिखा रही हैं। मार्च के आखिर में भी वादी सवात में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। तफसीलात बता रहे हैं सवात से डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात और मुल्का इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस जाती सर्दी जो है वो एक दफ़ा फिर लौट आई है। जो मौसमियाती तब्दीली है यकीनन वो अपना रंग दिखा रही है, और यहाँ के मकामी लोग भी हैरान हैं कि आमतौर पर मार्च के आखिर में इस किस्म की सर्दी नहीं होती, लेकिन इस साल मार्च के आखिर में भी अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। लोग इस वजह से भी हैरान हैं कि जब धूप निकलती है तो हल्की गर्मी पड़ती है, लोग सुबह वास्कट पहनते हैं, जबकि शाम को दोबारा जैकेट्स निकालनी पड़ती है। यकीनन जो मौसमियाती तब्दीली है तो इससे न सिर्फ मकामी लोग मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि जो आने वाले सयाह हैं वो भी जब सयाहती मकामात का रुख करते हैं तो वो इस बात पर हैरान होते हैं कि अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जाए या फिर हल्के कपड़े जो है वो पहने। तो यकीनन जो मौसमियाती तब्दीली है तो उस वजह से इस साल मार्च के आखिर में भी स्वात के मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही है, जबकि जो स्वात के बला इलाके हैं जिसमें वादी कालाम और मालम जब्बा, तो आज भी वहाँ पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है।